السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آل انڈیا صنعتی نمائش کے لیے الٹی گنتی شروع، 25 فروری سے دوبارہ شروع ہوگا صنعتی نمائش۔ 12 سال کے بچوں کے لیے حیدرآباد کی ویکسین کو ہنگامی استعمال کی منظوری۔ بھارت کے ڈرگس کنٹرولر جنرل نے 12 سے 18 سال کے بچوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کوربیویکس کے ایمرجنسی استعمال کی دی منظوری۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، PRC کے بقایا جات جاری کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کچھ دن پہلے ایک معصوم بچہ گم ہونے کی شکایت درج کروائی گئی تھی۔ حبیب نگر PS کو معلومات ملی کہ وہ بچہ دہلی میں ہے، جس پر حبیب نگر پولیس دہلی پہنچ کر بچے کو والدین کے حوالے کر دیا۔ رچا کنڈا پولیس نے ٹائر لوڈ لاری ڈکیتی اور چوری میں ملوث ایک عادی بین ریاستی گینگ کو کیا گرفتار اور 152 MRF ٹائرز، ماروتی سیاز کار، ایکٹیوا بائیک اور دیگر اشیاء کیے برآمد۔ آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس میڈیا پلس آڈیٹوریم میں شمشاد قادری، آل انڈیا صدر صوفی خیر الدین قادری، نائب صدر کنوینر عنایت علی باقری، ابرار احمد آزاد، مدم عالیہ اور شیراز خان کی قیادت میں منعقد ہوئی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے الیکٹرانک موٹر وہیکل کے استعمال کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ میں تعاون کرنے والوں کے لیے بیٹریوں کی تبدیلی کے لیے اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ، اور جلد ہی شہر حیدرآباد کے تمام زون میں کم از کم 6 بیٹری تبدیل کرنے کے اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے جائیداد ٹیکس ادائیگی میں مزید سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا۔ چنانچہ GHMC کے انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کی جانب سے جلد ہی UPI یونیفائڈ پیمنٹ سروس، پیمنٹ QR کوڈ، فون پے، پے TM اور دیگر موبائل والیٹ سے ادائیگی ٹیکس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ گجرات پہنچا حجاب تنازعہ، امتحان دینے کے لیے پہنچے باحجاب مسلم طالبات کے خلاف VHP کا احتجاج، 15 زیر حراست۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بھارت کے ڈرگس کنٹرولر جنرل نے 12 سے 18 سال کے بچوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کوربیویکس کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اس ویکسین کو حیدرآباد کی کمپنی بایولوجیکل لمیٹڈ نے تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے اس ویکسین کو گزشتہ برس دسمبر میں بالغ آبادی کے لیے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی گئی تھی۔ کوربیویکس ویکسین کی 2 ڈوز 28 دن کے وقفے سے دی جاتی ہے اور اسے 2 سے 8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین کے 2 مہینے کے PRC کے بقایا جات کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بقایا جات کی ادائیگی سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں۔ 1 اپریل 2020 سے 31 مئی 2021 تک کے PRC کے بقایا جات کی رقم ملازمین اور وظیفہ یابوں کو 36 اقساط میں ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مختلف کارپوریشنوں، اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی PRC کے بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ حکومت نے فوت ہونے والے ملازمین کے ارکان خاندان کو یہ رقم یکشمت ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کچھ دن پہلے ایک معصوم بچہ گم ہو گیا تھا اور اس کی شکایت پولیس اسٹیشن میں کی گئی تھی، جس پر حبیب نگر پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ دہلی پولیس کے پاس ہے، جس پر حبیب نگر PS کے SI دہلی گئے اور بچے کو حیدرآباد لے کر آئے۔ بعد ازاں بچے کو گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حبیب نگر پولیس نے تفصیلات بتائی۔
गुड मॉर्निंग 17/2/2022 में मोहम्मद हनीफ एक कंप्लेंट दे दिया। इसका बच्चा अयान एज अबाउट 6 ईयर्स, उन्होंने घर से निकल गए और कंप्लेंट दिया तो मिसिंग कंप्लेंट करा। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद हम लोग FIR इशू करे, 37 ऐसे के अंडर्स कर दिया। 37 ऐसे के अंडर्स करने के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल टेक्नोलॉजी में हम लोग इंफॉर्मेशन पास करें। इंफॉर्मेशन पास करने के बाद 2 दिन 3 दिन पूरा नाइट एंड डे पूरा हमारा टीम, पुलिस वाला टीम चेक करे, हमारा SI भी चेक करे, लोकल पब्लिक भी हेल्प करा मेरा, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। सो फाइनली ट्विटर में एंड फेसबुक में दे के दिल्ली पुलिस वाला इन्फॉर्म करे ये बच्चा हमारे का नहीं है बोल के। सो जाके कल हमारा DA नेशनल इंस्पेक्टर को दिल्ली को भिजा दिया, भिजा के बच्चे को ला लिया। ये बच्चे का नाम है अयान हीरो। ये वहाँ दिल्ली उन लोग अंदर ले लेके चिल्ड्रंस सेफ्टी में उधर रख दिया। बाद में कल हमारा DA साहब जाके लेके आया था, आज इधर और प्रोड्यूस करके उसको हैंड ओवर कर देता। ये बच्चे के इसको पूरा बात अच्छा बात करने के नहीं आता, माँ बाप का नाम बोलने के नहीं आता। सो बड़ा मास्क ने ऐसा एक्टिव है बच्चा, ऐसा जा रहे तो एक दाढ़ी वाला इसे रजाकुंडा पुलिस ने टायर लोड लॉरी डकैती और चोरी में मुलविस एक आधी बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार किया और 152 MRF टायर्स, मारुति सियाज कार, एक्टिवा बाइक और दीगर अशिया बरामद कर लिए। इसके अलावा 20,000 रुपए नकद रकम भी बरामद कर लिए, जिसकी कुल मालियत 44,72,000 रुपए और दीगर बताई गई है। CCS LB नगर की टीम, IT सेल और रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर सुबह के औकात में पहाड़ी शरीफ PS के हुदूद में 3 आधी बैन रियासती लॉरी टायर लोड चोरी करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ कि 18 तारीख को रात में 9:45 के स्पाइस जेट फ्लाइट से जमशेद ऑलरेडी दिल्ली के लिए निकल चुका है। तो फ्लाइट एयर में था तो हमने इमीडिएटली दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ DCP त्यागी साहब को कांटेक्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेशन दिया और जैसा ही ये जमशेद दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर गया, वो दिल्ली पुलिस ने उसे अपने हवाले में लेके हमें इतला किया और हमारी टीम 19 तारीख को हम स्पेशल फ्लाइट से यहाँ से टीम भेज के वो जमशेद को हमने कस्टडी में ले लिया। उसके इंट्रोगेशन पे उसके साथ में एक राहिल खान करके, ये भी मेवात हरियाणा का रहने वाला, ये दोनों ने मिलके ये पूरा प्लान करके ऑफेंस किया करके उसने कबूली जवाब दिया। और ये पहला ऑफेंस नहीं तो पिछले महीने भी 18 तारीख को उन्होंने अपोलो टायर का 220 टायर का लोड भी ऐसा ही यहाँ हैदराबाद में डाइवर्ट किया था। और यहाँ हैदराबाद में कमल काबरा करके, जिसका चुड़ी बाज़ार में टायर का दुकान है, वो रिसीवर है मेन, और 2 ब्रोकर्स रेन बाज़ार के अफरोज अली खान और सैयद बशीर हुसैन, ये गैंग को हेल्प करते करके पूरी इन्फॉर्मेशन जमशेद से हमें मिली। जमशेद से और एक महत्वपूर्ण जो हमें सुराग मिला, वो एक 8 mm का राउंड, लाइव राउंड हमें मिला। एयरपोर्ट जाने के पहले पुलिस वहाँ पे चेकिंग होगा करके इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में शमशाद खादरी, ऑल इंडिया सदर सूफी खैरुद्दीन खादरी, नायब सदर कन्वेनर इनायत अली बाकरी, अबरार अहमद आज़ाद, मदोम आलिया और शिराज खान की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान अक़लियतों के मसाइल और अक़लियती बजट, मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन पर तबादला ख्याल किया गया। बादज़ा अक़लियतों के लिए बजट का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया गया जैसा कि तेलंगाना हुकूमत ने दिया था। इस पर बातचीत की गई और वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। फैसला वक्फ बोर्ड जो हारी है, हुकूमत के ईमा पर हारा गया है, क्योंकि एक तरफ से फरीक हुकूमत थी। इनको शर्म आना चाहिए था कि हुकूमत कैसा फरीक बने। आप इख्तिदार से पहले कांग्रेस के दौर में ये आप खुद फरीक बने हुए थे कि वो ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दिलाऊंगा मैं। कहाँ गया आपका वादा? 12% तो छोड़ दीजिए। आप हर कदम पर धोखा देते हुए आए हैं, हर कदम पर धोखा दिए हैं। आप मुसलमान और माइनॉरिटी तेलंगाना के अवाम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। अब आपको नविश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। 2023 में अगर आप अभी भी हमारे हुकूक नहीं देंगे तो मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में
TRS सरकार के खिलाफ हम तहरीक शुरू कर देंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल के इस्तेमाल के जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करने वालों के लिए बैटरियों की तब्दीली के लिए स्टेशन के क़याम का फैसला किया गया है और जल्द ही शहर हैदराबाद के तमाम जोन में कम अज़ कम 6 बैटरी तब्दील करने के स्टेशन कायम किए जाएंगे। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज को रवाना करदा मनसूबे के मुताबिक शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल के कल्चर में इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में बैटरी तब्दील करने के मराकज का क़याम अमल में लाया जाए। ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद के 4 जोन्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट के क़याम के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है और इन प्लांट्स के क़याम के बाद इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करने वालों को बैटरी चार्ज करने के लिए मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि बैटरी खत्म होने की सूरत में मोटर कार या मोटर व्हीकल के मालिकीन इन चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर बैटरी तब्दील कर सकते हैं और मराकज पर यह सहूलत दस्तयाब रहेगी। ऑल इंडिया सनती नुमाइश के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नुमाइश जिसे तकरीबन हर हैदराबादी पुकारता है, इस तकरीब के दोबारा शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाने के साथ लोग इंतजार कर रहे। ओमिक्रॉन से शुरू होने वाली तीसरी कोविड-19 लहर के थमने के बाद नुमाइश, जो गुज़िश्ता महीने शुरू होने के चंद दिनों बाद वबाई अमराज की वजह से मुअत्तल कर दी गई थी, 25 फरवरी से दोबारा शुरू होगी। शहर के तकरीबन हर घर के कैलेंडर में निशानजद एक मिस्ड विजिट इवेंट, ये नुमाइश हर साल 1 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान नामपली के नुमाइश मैदान में मुनक़िद की जाती है। अहले खाना सालाना तकरीब देखने का बेताबी से इंतजार करते हैं, जो शहर में मुतअद्दिद शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मैदानों के आने के बावजूद अब भी अपनी दिलकशी बरकरार रखे हुए हैं। तीसरी कोविड-19 लहर के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की हिदायत के बाद नुमाइश को मुअत्तल कर दिया गया था। उसे रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम हिफाजती इक़दामात के साथ दोबारा शुरू किया जा रहा है। एग्जीबिशन सोसाइटी के सदर अश्विन मार्गम ने ये बात कही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मगरबी बंगाल वगैरह के ताजर स्टॉल लगाते हैं और कपड़े, दस्तकारी, बिस्तर की चादरों और फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और जूते तक की मसनूआत बेचते हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना है। उनके अलावा खाने के शौकीन के लिए नमकीन, सैंडविच, हलीम और कबाब फराहम करने वाले खाने पीने की जगह भी हैं। इसके अलावा एक ऐसा मैदान है जहां लोग व्हीकल सवारियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और स्टंट मैन को मौत के कुएं में परफॉर्म करते हुए भी देख सकते हैं। तमाम इंतजामात अपनी जगह पर हैं। दुकानदार आकर स्टॉल लगा रहे। कुछ लोगों ने रकम की वापसी की दरख्वास्त की थी और उन्हें अदायगी कर दी गई थी, लेकिन अब वो अपने स्टॉल लगाने के लिए वापस आ गए हैं और सोसाइटी के सदर से बातचीत भी कर रहे। नुमाइश गुज़िश्ता साल भी कोविड से मजबूर पाबंदियों की वजह से मुनक़िद नहीं हुई थी। 2020 में वबाई बीमारी के आने से पहले तकरीबन 20 लाख लोगों ने नुमाइश का दौरा किया था, जिसने ज़ायरीन की तादाद का एक हमा वक्ती रिकॉर्ड कायम किया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने से मुतल्लिक़ मुजव्वज़ा कानून साजी का स्कूल एसोसिएशन की जानिब से खैर मकदम किया गया। मुसलिमा स्कूलों की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि तालीमी इदारों में यकसा तौर पर फीस के निफाज से तलबा को सहूलत होगी। खासतौर पर गरीब और मुतवस्सित तबक़ात इजाफी बोझ से बच जाएंगे। आमतौर पर कॉरपोरेट इदारों में तालीमी फीस में
यकसानियत नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत से बारहा नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने कानून साजी का फैसला किया। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम से दरख्वास्त की कि कानून साजी के वक्त प्रोफेसर तिरुपति राव कमेटी की सिफारिशात को पेश रखा जाए ताकि तालीमी इदारों के लिए भी कोई दुश्वारी न हो। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तालीमी फीस के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ याददाश्त हवाले की। हुकूमत ने कानून साजी के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब गुजरात भी पहुंच गया है। यहाँ के शहर सूरत के एक स्कूल में बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के खिलाफ सख्त गिर हिंदू तंजीम VHP विश्व हिंदू परिषद ने एहतजाज किया। पुलिस ने तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हिंदू तंजीम के 15 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है ताकि माहौल खराब न हो। मामला सूरत के वर्छा में वाक़े PP सावनी स्कूल में पेश आया। यहाँ मंगल के रोज 4 था 5 मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंचे थे। उनकी वीडियो बनाकर कुछ तलबा ने उसे VHP को भेज दिया। कुछ देर बाद VHP के लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मुश्तल हुजूम स्कूल पहुंचने के बाद बात करने के लिए सीधा प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंच गया। इसके बाद स्कूल में तनाज़ा खड़ा हो गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और VHP के 15 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। ऑल इंडिया सनती नुमाइश के लिए उल्टी गिनती शुरू। 25 फरवरी से दोबारा शुरू होगा सनती नुमाइश। 12 साल के बच्चों के लिए हैदराबाद की वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। PRC के बकायाजात जारी करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चा गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हबीबनगर PS को मालूमात मिली कि वो बच्चा दिल्ली में है, जिस पर हबीबनगर पुलिस दिल्ली पहुंचकर बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। रजाकुंडा पुलिस ने टायर लोड लॉरी डकैती और चोरी में मुलविस एक आदि बैन रियासती गैंग को किया गिरफ्तार और 152 MRF टायर्स, मारुति सियाज कार, एक्टिवा बाइक और दीगर अशिया किए बरामद। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में शमशाद कादरी, ऑल इंडिया सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी, नायब सदर कन्वेनर इनायत अली बाकरी, अबरार अहमद आज़ाद, मदुम आलिया और शिराज खान की क़यादत में मुनक्किद हुई। मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल के इस्तेमाल के जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करने वालों के लिए बैटरियों की तब्दीली के लिए स्टेशन के क़याम का फैसला और जल्द ही शहर हैदराबाद के तमाम जोन में कम अज़ कम 6 बैटरी तब्दील करने के स्टेशन कायम किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जायदाद टैक्स अदायगी में मजीद सहूलत और आसानी पैदा करने के लिए एक अहम फैसला किया। चुनाचा GHMC के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे की जानिब से जल्द ही UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, पेमेंट QR कोड, फोन पे, पेटीएम और दीगर मोबाइल वॉलेट से अदायगी टैक्स की सहूलत फराहम की जाएगी। गुजरात पहुंचा हिजाब तनाज़ा। इम्तिहान देने के लिए पहुंचे बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के खिलाफ VHP का एहतजाज, 15 ज़ेर हिरासत।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।